introduction last week. Today we are ready to dive into the prophecies of the book of Daniel. The Chehism helps explain the seemingly contradictory plan for Israel under Gentile domination and persecution. Tonight we are going to study the first part of this Chehism. In verse 1 we hear that Nebuchadnezzar's second full year as a king, he had dreams. In this case, the Lord withheld the meaning from the king to ensure the king would reach out for explanation. Predictably, the counselors object to the new rules since it makes their job much harder and will expose any fraud. Not getting change. This sets up the entrance of our hero Daniel. Predictably, Nebuchadnezzar declares that all wise men be destroyed. Daniel didn't want to die if God would spare him. Daniel's next step is to buy some time. Daniel declared that he was ready to serve the king, but then he stepped back long enough to seek the Lord's blessing. In Daniel's narrative, he jumps immediately to receiving an answer from God. Prophecies and the pattern. After our introduction last week, today we are ready to dive into the prophecies of the book of Daniel. As I already told you, the next section of the book is written in Aramaic, which indicates that the context was intended for both the Jew and the Gentile. I would like to clarify here that when Daniel was writing the book, Daniel was basically a Hebrew, and the Jews who were brought into exile were forced to learn the Aramaic language. Nebuchadnezzar was a Gentile who never knew the God of Israel and the God of Daniel. The book, as I told you from chapter 2, 1-2 verse are written in Hebrew, all other till chapter 7 are written in Aramaic. Now why so? Because the Gentiles which are there and the Jews which are there are able to understand exactly what Daniel has to write. This section runs for the next 6 chapters. That means from chapter 2 onwards to chapter 7. And it contains one of the most impressive prophetic revelation anywhere in the scripture. The section is organized as chiasm, which helps us understand the overall meaning of the section. A chiasm is structured way of organizing a writing to emphasize the main point, similar to the way we use the outline. Abhishek. The chiasm of chapter 2 to 7 can be charted this way. I am given the outline of chapter 2 to chapter 7. Chiasm means what? Bringing parallel things. The prophecy concerning 4 Gentile empires that dominate Israel and the world. God delivers Daniel and his friend from the Gentile persecution. God humbles the Gentile king Nebuchadnezzar to demonstrate his sovereignty. God delivers Daniel from Gentile persecution. The prophecy concerning 4 Gentile empires that dominate Israel and the world is all mentioned in
Daniel chapter 2 to 7. The Chasen helps to explain the seemingly contradictory plan for Israel under Gentile domination and persecution. Very interesting to note. While at the same time God protects and preserves the Jewish people until a time of rescue, Israel will be on the losing side of a struggle against the Gentile world. But it's God who put Israel there. And it's God who will ultimately rescue Israel. Chehism is nothing but a Latin figure of speech. Tonight we will study the first part of this Chehism. Chapter 2 we will begin. In chapter 2, Daniel will interpret a dream for the king of Babylon. In this dream, the Lord reveals his plan to bring a succession to the Gentile kingdoms to rule the earth. During this time, Israel will be under the authority of Gentile power. But at the end of the long period of history, the Lord will restore Israel as a chief nation on the earth. And thus will the Messiah usher in the long-awaited kingdom promised to Israel. Let's read Daniel chapter 2, verse 1 to 11. I am going to interpret this verse by verse. I want you to be attentive. If you have the Bible, please open as we read Daniel chapter 2. Or if you do not have, you are not handicapped, all the verses are coming on the screen. अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नेबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। दूसरा वचन, तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तांत्री, टोने और कसदी बुलाया जाए कि वे राजा को उस स्वप्न बताए। सो वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तब राजा ने उनसे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। कसदियों ने राजा से आरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिया जाएगा। और यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। सातवां वचन, इसलिए तुम मुझे फूल समेत स्वप्न बताओ। उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूं कि तुम ये देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। नौवां वचन, इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न न बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है, क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब एक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न को बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। 10वीं आयत, कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और न कोई ऐसा राजा व प्रधान व हकीम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी व तांत्रिक व कसदी से ऐसी बात पूछी हो। 11वीं आयत, जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बात बता सके। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल। नेबूकदनेस्सर राजा ने, बाइबल कहती है दूसरे अध्याय में, एक सपना देखा
1 से 11वीं आयत हमने पढ़ी, और उस सपने में जो देखा था उसका इंटरप्रिटेशन करने के लिए उसने सारे ज्योतिषी लोगों को, कसदियों को, तांत्रिक मांत्रिक जितने सारे लोग थे उन सबको बुलाया। आपको यह पता होना चाहिए कि राजा ने दानियल को और उसके दोस्तों को भी इसी चीजों के लिए तैयार किया, प्रशिक्षण दिया, ताकि वो इस तांत्रिक मांत्रिक जैसे उससे बेहतर बन जाएं। अब दानियल की भी प्रशिक्षण पूरी हो चुकी थी, तब राजा ने इस स्वप्न को देखा था। पहले ही वचन में हमने ये सुना कि नबूकदनेस्सर राजा का दूसरा साल, जब वो दूसरे साल में था राजा के, बहुत से स्वप्न देखने लगा। ही हैड ड्रीम्स as well. Soon we see in the chapter the dreams were not the result of too much pizza the night before. मतलब ये जो सपना आया वो इसलिए नहीं आया क्योंकि राजा ने रात के पहले भरपेट भोजन किया था और वो गहरी नींद में सोया और उसे स्वप्न आया, ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने ये दर्शन राजा को दिया, उसके पीछे परमेश्वर का कोई उद्देश्य था, मकसद था। इब्रानी भाषा कहती है कि राजा बहुत से सपने देखा करता। दूसरे अध्याय के 1 से 3 आयत तक सारी बातें इब्रानी भाषा में लिखी गई है। चौथे आयत से अरामिक भाषा की शुरुआत दानियल ने की। So either this dream repeated itself or the king received the dream in pieces. ये जो स्वप्न था वो बार बार राजा को रात भर आया, या हो सकता है वो सपना उसने भागों भागों में देखा होगा रात भर। Either way, God made the vision so dramatic, so troubling, so proactive that the king didn't forget them and couldn't ignore them. Yet God has also done something else interesting. बहुत ही दिलचस्पी की बात परमेश्वर ने भी की है। उसने ये किया कि राजा ने जो स्वप्न देखा है वो राजा को समझ न पाए, ऐसा स्वप्न परमेश्वर ने राजा को दिखाया। मैं आपको बता दूं, हर सपना जो आप देखते हैं उसमें कोई भविष्यवाणी या उसका अर्थ परमेश्वर देता है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन ये जो राजा को स्वप्न दिया था परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर राजा को, इसके पीछे भविष्यवाणी थी, कुछ छिपी हुई बातें जो राजा परमेश्वर प्रकट करना चाहता। बहुत से बार हमने देखे हुए स्वप्न का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन कब कब परमेश्वर ऐसे भी स्वप्न दिखाता है जिसके द्वारा वो हमसे कुछ बातें करना चाहता है, हमको कुछ बताना चाहता है और पर्दे के पीछे की बातें हमारे सामने लाना चाहता है। In this case, the Lord withheld the meaning from the king to ensure the king would reach out for explanation. क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? परमेश्वर चाहता था कि ये राजा इस स्वप्न के उलघड़ा के लिए, इसके इंटरप्रिटेशन के लिए दानियल को बुलाया जाए और कोई भी इसका अनुवाद न कर सके इस स्वप्न का। ये सारी परमेश्वर की योजना थी। आपको मैं बता दूं, परमेश्वर योजनाकारी परमेश्वर है। हर एक बातें जो उसकी बनती है उसके पीछे उसका कोई ना कोई कारण होता है, और वैसा ही राजा ने किया। नबूकदनेस्सर राजा ने सारे जो बेबीलोन शहर के जितने एडवाइजर थे, सलाहकार, सबको बुलाया ताकि उनको सलाह मिले। इनमें कौन कौन से लोग थे? मैजिशियन थे, जादू करने वाले, आत्माओं को बुलाने वाले, दुष्ट आत्माओं के द्वारा प्रकट करने वाले, और एस्ट्रोलॉजर्स मतलब भविष्य बताने वाले। ऐसे कुछ जादूगर
जो दैविक शक्ति से भविष्य काल की बातों को बताए। ऐसे कुछ आत्मा बुलाने वाले लोग जो मरे हुए आत्माओं को बुलाते और उनके द्वारा प्रश्नों का उलघाड़ा करते। ऐसे कुछ जादू टोने वाले लोग जो शैतानिक शक्ति के द्वारा अर्थ को बताते। और ऐसे कुछ लोग जो स्वर को की अभ्यास करके भविष्य बातों को बताते, जिसे हम ज्योतिष कहते हैं। Then the king gave the command to all the magicians, the astrologer, the sorcerer and the Chaldeans to tell the king his dream. देखिए, राजा ने, आपको मालूम है फारो ने जब स्वप्न देखा था तो वो स्वप्न को उसने यूसुफ को बताया और उसके बाद यूसुफ ने उसका अनुवाद किया। लेकिन यहां पर ये जो राजा है वो ये कहता है कि मैं इस स्वप्न को नहीं बताऊंगा, स्वप्न भी आपको बताना होगा। ये क्यों कह रहा है राजा ऐसा? बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है भाई। अनेक मैजिशियन लोगों ने कहा कि इसके पहले कोई भी राजा ने ऐसा नहीं किया। हमको स्वप्न बताया जाता था और उस स्वप्न का अर्थ हम बताते थे। देखिए, नबूकदनेस्सर राजा बहुत होशियार था। उसे लग रहा था जो मुझे मालूम है अगर वो ये बताए तो मुझे परखने को मिलेगा ये सही बता रहे या गलत बता रहे हैं। क्योंकि अगर स्वप्न का उलघाड़ा अगर ये करे जो उसे मालूम ही नहीं, तो ये हो सकता है कि अपनी खुद की मनगढ़ी कहानी बताएं। इसी कारण की वजह से नबूकदनेस्सर राजा ने उस स्वप्न को नहीं बताया। क्योंकि देखो, स्वप्न तो उसने देखा था, स्वप्न उसे पता था और वो ये चाहता कि जब वो उसके स्वप्न को बताए तब उसको पता चलेगा कि वो जो जानता है, अगर ये लोग जो एस्ट्रोलॉजर है, मैजिशियन है, सॉर्सरर है, उसके बिना बोले अगर ये सारी बातें बता दे तो मतलब वो सही बोल रहे हैं, नहीं तो वो कुछ भी झूठ बोल देंगे। ऐसा भी हो सकता है राजा को पटाने के लिए। As we see in the text, these men were called to give an interpretation, but the king wanted to be sure they were telling the truth. इसीलिए नबूकदनेस्सर राजा ने कहा कि देखो, आपको स्वप्न भी बताना पड़ेगा और उसका इंटरप्रिटेशन भी, उसका अनुवाद भी। हमेशा ये जो लोग थे, ये हमेशा स्वप्न को पहले सुना करते और उसके बाद ही उसका अनुवाद करते। और स्वप्न सुनने के बाद वो अपने अपने दैविक शक्ति जो दुष्ट आत्माओं की है उनको अप्रोच करते और उससे उसका इंटरप्रिटेशन लेते, अनुवाद लेते। Probably if their sources fail to answer, the men mightly propose their own answer to satisfy the king's curiosity. हो सकता है कि जब जिस आत्माओं से वो संपर्क करे अगर उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया तो हो सकता है कि वो जो लोग हैं अपने मन का उत्तर दें। It seemed the king suspected they might do so, which is why he threw them this curveball कि भाई स्वप्न भी बताओ और अनुवाद भी करो। Predictably, the counselors object to the new rules since it makes their job much harder and will expose any of their fraud. Starting with the first protest in the second half of verse 4, Daniel switches to write in Aramaic. The first 3 verses were still in Hebrew, but now from verse 4 until chapter 7 verse 28, the original text remains in Aramaic. This indicates that the subject of Daniel writing is to be known by the Gentiles and the Jews. मतलब ये है कि उसने ये सारी बातें अरामिक में इसलिए लिखी ताकि जो बेबीलोन के जो लोग थे और जो यहूदी लोग जिन्होंने अरामिक भाषा को भी सीखा था
दोनों को इसका अर्थ समझ सके. When these men protest, the king sees the right through their scheme. और जब वो कहने लगे कि ऐसा असंभव है, तो 5वीं आयत में राजा ने क्या कहा? He declared that he will tear the limb from limb. उसने कह दिया कि मैं आपके शरीर का पूरा विनाश कर दूंगा और आपके घरों का भी सत्यानाश कर दूंगा. और कहता है कि ये ठगने वाले लोग, तुम तो झूठ बोलने वाले लोग हो. वो ये देखना चाहता है कि जो स्वप्न उसने देखा है, जो उसे पता है, क्या वो जो उसे पता है वो ये सच कहते हैं या नहीं. मतलब स्वप्न क्या देखा था राजा ने, अगर वो उस स्वप्न को बताएंगे, मतलब वो स्वप्न के अनुवाद को भी सही बताने वाले हैं. Then by what power could he expect them to tell him things he doesn't know? कौन से सामर्थ्य के द्वारा वो ये देखना चाहता था कि वो सारे लोग उन बातों को बताए जो सिर्फ उसे पता है. और इसी कारण राजा ने उन सारे लोगों को अपने राजमहल में काम पर रखा था. The Chaldean answered the king and said, there is not a man on the earth who can tell the king's matter. देखिए, सारे लोग हार गए. कहा कि एक भी मनुष्य पृथ्वी पर नहीं मिलेगा जो राजा को स्वप्न भी बताए, जो स्वप्न राजा ने देखा है. This back and forth of the king's demand and the councillors' protest served to set up the next part of the story. जब ये सारे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं होगा राजा, स्वप्न बताओ, स्वप्न बताओ, तो कहानी का अगला भाग और अगला मोड़ शुरू हुआ है. Notice how they end their final protest against the king's method. They initiate that the Nebuchadnezzar isn't a great king, since no great king will do such things. क्या कहने लगे वो? नेबुकदनेस्सर राजा कोई महान राजा नहीं है, क्योंकि कोई भी महान राजा ऐसे नहीं कहेगा कि हमको स्वप्न भी आप ही बताओ. And they claim that only gods could reveal the things that the king seeks to know. और ये भी बोलने लगे कि सिर्फ परमेश्वर ही है, उनका परमेश्वर, जो इन सारे बातों को, जो स्वप्न राजा ने देखा, वो स्वप्न की को भी जो लोग है परमेश्वर ही बता पाएगा, कोई इंसान नहीं बता पाएगा. And that is precisely the conclusion the Lord wants Nebuchadnezzar to reach as well. और परमेश्वर यही चाहता था कि नेबुकदनेस्सर राजा के पास ये सारी बातें पहुंचे. This is the dream that only Lord will reveal, though contrary to their claims, He will reveal it through flesh. देखिए, सिर्फ परमेश्वर इस बात को खोलकर बता सकता है किसी मनुष्य के द्वारा. ये बात परमेश्वर चाहता कि राजा तक पहुंचे. कोई नहीं बता पाया. This sets up their entrance of our hero. इसी के वजह से दानियल को एंट्री मिली. अगर ड्रीम बताया होता तो हो सकता है कि वहां के जो कुछ जादूगार लोग हैं, जो भविष्य वाणी करने वाले लोग हैं, जो भविष्य बताने वाले लोग, आत्मा को बुलाने वाले लोग, उसका इंटरप्रिटेशन कर सकते थे. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. द किंग रिसीव्ड दिस ड्रीम्स इन हिज सेकेंड ईयर. दूसरा साल. देखिए, पहले साल में ये चारों लोगों को बुलाया गया था और पहले साल में उनको प्रशिक्षण भी दिया गया. अब एक साल बीत चुका है. दूसरे साल में परमेश्वर ने राजा नेबुकदनेस्सर को स्वप्न दिखाया. The ancient Babylonians counted a monarch first year of reign as starting on the first calendar year after he took the throne. Ancient record shows that Nebuchadnezzar became a king at the halfway point of the year 605 BC.
So the king's first full year didn't start until he had already been ruling for 6 months. So his second full year started in 603 BC and ended in 602 BC. Therefore, Daniel was either just ending his 3 years training or very near the end when these dreams came to the king. दानियल के ट्रेनिंग का पीरियड समाप्त होने आ चुका था. In either case, Daniel was least qualified among all the king's men. दानियल की जस्ट ट्रेनिंग समाप्त हो चुकी थी, इसलिए जितने राजा के पास जितने सारे सलाहकार थे उसमें से दानियल सबसे कुमकुवत था, अनुभव नहीं था उसके पास. Which made him perfect candidate to be elevated in God's service. मैंने आपको पहले भी कहा, परमेश्वर मूर्खों को चुनता है, ऐसे लोगों को चुनता है जिनके पास अनुभव नहीं है. और दानियल की परिस्थिति भी ऐसी ही थी. कोई दानियल को नहीं जानता था, किसी को पता नहीं था दानियल कौन है, क्योंकि दानियल की अभी ट्रेनिंग पूरी हो रही थी. लेकिन बाकी जितने मैजिशियंस थे, एस्ट्रोलॉजर्स थे, सॉर्सरर्स थे, उनको वो सारे लोग नामिंचित थे. For when Daniel is able to interpret the dream, God will be glorified, not Daniel. अगर दानियल अनुवाद करता है इस स्वप्न का, तो हो सकता है परमेश्वर की महिमा हो, दानियल की नहीं. 12 से लेकर 18वीं आयत तक हम पढ़ रहे हैं. इस पर राजा ने झुंझलार कर और बहुत ही क्रोधित होकर बाबुल के सब पंडितों के नाश करने की आज्ञा दे दी. सो ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों का घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाए. देखिए, दानियल का भी घात होने वाला था. तब दानियल ने जल्लादों के प्रधान आर्यक से, जो बाबुल के पंडितों को घात करने के लिए निकाला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हकीम आर्यक से पूछने लगा, ये आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकाली. तब आर्यक ने दानियल को इसका भेद बता दिया, और दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए, वह महाराज का स्वप्न का फल बता देगा. तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाइल और अजराया को ये हाल बताकर कहा. इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर को की दया के लिए यह कर प्रार्थना करो कि बाबुल के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नाश न किए जाए. देखिए, दानियल ने क्या प्रार्थना की. खुद का नाश नहीं होना, ऐसी प्रार्थना नहीं की. उसने ऐसी प्रार्थना की कि जितने सारे लोग का नाश होने वाला है, ओके, परमेश्वर दया करे और उन सब लोगों को बचाए. दानियल, हनन्याह, शद्रक, अजराया, सारे लोग प्रार्थना करने लगे. उन्होंने परमेश्वर के पास प्रार्थना की. Predictably, Nebuchadnezzar declared that all wise men will be destroyed. For this reason, king was angry and very furious and gave the command to destroy all the wise men of Babylon. Since Daniel had just entered service in this capacity, he and his friends suddenly find themselves caught up in this. In fact, they know nothing of what brought about this sudden decree. उनको कुछ भी पता नहीं था कि ऐसा आज्ञा राजा ने क्यों दी. So Daniel shows great discretion but with discernment. In other words, Daniel doesn't panic. He doesn't beg or argue. Daniel ने कोई भी तरह से धक्का नहीं लिया, या उसने कोई वाद विवाद नहीं किया, कोई आश्चर्यचकित भी नहीं हुआ.
He remains rational and thoughtful, though aware of the seriousness of the situation. परिस्थिति तो काफी गंभीर थी, लेकिन उसने क्या किया? उसने सोचा कि मुझे सोचना होगा इसके ऊपर, कुछ ना कुछ परमेश्वर मार्ग जरूर निकालेगा. Simply put, Daniel doesn't operate in fear. इसका मतलब यह है कि मृत्यु दंड मिलने के बाद की आज्ञा के बाद भी दानियल डरा नहीं. आपको मैं एक बात बता दूं, जो डर जाता है उसके जीवन में विश्वास काम नहीं करता. दानियल डरा नहीं, क्योंकि दानियल को मालूम है परमेश्वर उसके साथ था. जिस परमेश्वर ने उसको बेबीलोन शहर में लाया, वही परमेश्वर उसे संभाल कर रखेगा. और इज़राइल का परमेश्वर इसका उत्तर दे सकता है. Fear is a sinful response to the circumstances of life, reflecting a failure to trust the Lord. जब जब भय आता है तो वो परिस्थिति के लिए ऐसी प्रतिक्रिया होती है जो पापमय है, ये बताते हुए कि हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं है. And it often born out of longing to pursue this life at the expense of the next. मतलब कैसे भी करके इस जीवन को संभाला जाए. Jesus was speaking about this dilemma when he said in John 12:25, he who loves his life loses it, and he who hates his life in this world will keep it to the life eternal. देखिए, संसार में हर एक व्यक्ति अपने प्राणों से बहुत प्यार करता है. यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने प्राणों को त्याग देगा वही जीवित रहेगा इस संसार में. Daniel didn't want to die if God would spare him. But he knew that his ability to understand and operate in God's will in the midst of these challenging circumstances depended on keeping his wits about him. उसे पता था कि इन हालातों में अगर उसको इस हालात से बाहर निकलना है तो परमेश्वर की बात को जोतना पड़ेगा और परमेश्वर ही उसे इस सारी चीजों से बाहर निकालेगा. इसीलिए दानियल बहुत प्रैक्टिकल रूप से इस बातों को हैंडल कर रहा था. जब जब परिस्थिति कठिन हो जाती है प्रियो, दानियल की दूसरी किताब हमको यह सिखाती है कि हमको स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्रिएटिव बनना पड़ेगा, एडेप्टेबल बनना पड़ेगा. एडेप्टेबल मतलब क्या? हालातों के साथ अपने आप को बदलना, शांत रहना पड़ेगा, हर बातों के ऊपर सोचना पड़ेगा, ताकि हम कोई भी ऐसा काम ना करें कि हमारा चारित्र परमेश्वर की पवित्रता से हट जाए. ट्रस्टिंग गॉड फॉर वॉट एवर कम्स नेक्स्ट. Daniel's next step is to buy some time. इसीलिए दानियल का अगला कदम था कि कुछ समय लिया जाए ताकि परमेश्वर के पास प्रार्थना किया जाए और परमेश्वर उसको वो स्वप्न दिखाएगा और उसका अनुवाद भी दिखाएगा. इसलिए दानियल उसका दूसरा अध्याय 16वीं आयत, दानियल गया राजा के पास और उसने कहा कि कुछ राजा हमें समय दो ताकि हम आपका स्वप्न भी बताएं और अनुवाद भी करें. In his time to appeal to the Lord for an answer, for he knows that only Lord can grant him insight to save his life. उसे पता था कि परमेश्वर की ओर से परमेश्वर ही है जो उसको इस स्वप्न को बताएगा, उसका अनुवाद भी बताएगा, और कोई भी उसके जीवन को नहीं बचा सकता परमेश्वर के सिवाय. To get the time he needs, Daniel goes to the king and asks for the time. And the reason he gives is so that he can interpret the dream. वो ये बता रहा है कि मैं सिर्फ स्वप्न नहीं बताऊंगा, उसका अनुवाद भी बताऊंगा. He is already assuring the king that he can give the interpretation, which suggests that Daniel had a sense of his calling and gifting already. इसका मतलब ये दर्शाता है कि दानियल को पता है कि परमेश्वर ने उसको किस चीज के लिए बुलाया बेबीलोन में और राजा के सामने. He wasn't presuming God's will, except to assume that God wouldn't have placed him here except to serve for this purpose.
उसने जान लिया था कि परमेश्वर ने अगर उसको यहां पर लाया है सेवा करने के लिए तो इसी मकसद के लिए लाया है जो मकसद अब उसके सामने था. It's a fine line, admittedly, but I think we can operate in a similar confidence when we know the calling on our life. अगर आपके जीवन के ऊपर आपकी जो बुलावट है, अगर आप उस बुलावट को जानते हैं, तो दोस्तों आपके पास आत्मविश्वास होगा. दानियल को पता था कि उसकी कॉलिंग क्या है, इसलिए उसके पास आत्मविश्वास था. जो प्रचारक जिनके पास भरोसा होता है कि परमेश्वर ने उनको इस कार्य के लिए पवित्र आत्मा के दानों से भरा है, वो सुसमाचार फैलाने के लिए कभी आगे पीछे नहीं देखते. जो शिक्षक जिनको परमेश्वर ने दान और वरदान से भरा है, वो वचनों का अध्ययन करके वचनों को सिखाने के लिए उनको तकलीफ नहीं होती और समझाने के लिए भी तकलीफ नहीं होती जैसे दूसरों लोगों को होती है. The same can be said to those who have been calling and gifting to pray, heal and plant a church. If you are operating in God's calling and gifting, then you don't need to hesitate or apologize for confidence. Daniel declared that he was ready to serve the king. But then he stepped back long enough to seek the Lord's blessing. दानियल को पता चल गया था कि समय आ चुका है कि वो राजा के सेवा में प्रवेश करे, लेकिन वो समय चाहता कि परमेश्वर उसको आशीर्वादित करे पहले. Presumably, if the Lord had not granted approval, Daniel would have retreated from serving and gone to his death. अगर परमेश्वर ये नहीं चाहता कि वो राजा की सेवा करे, तो परमेश्वर उसको जिंदा नहीं रखता. But the Lord would have been, that would have been God's will. परमेश्वर की यही इच्छा थी कि वो राजा की सेवा करे. दानियल उसका दूसरा अध्याय 19 से लेकर 23वीं आयत को हम पढ़ रहे हैं. तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया. तो दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को ये कह कर धन्यवाद दिया. परमेश्वर का नाम युगानुयुग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है. समय और कृतज्ञों को वही पलटाता है. राजाओं का अस्त और उदय भी वही करता है. बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वाला को समझ भी वही देता है. 22वीं आयत. वही गुड़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है. वो जानता है कि अंधेरों में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है. 23वीं आयत. हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगे था, उसे तूने मुझ पर प्रकट किया, और तूने हमको राजा की बात बताई है. परमेश्वर ने प्रकट कर दिया. उन्होंने प्रार्थना की थी, परमेश्वर प्रकट कर. अब परमेश्वर ने उस स्वप्न को दानियल को प्रकट कर दिया. In Daniel's narrative, he jumps immediately to receiving an answer from God. जैसे उसने प्रार्थना की, तुरंत ही परमेश्वर ने उसके प्रार्थना का उत्तर दिया. It appears that he prayed that night and received an answer in the same night. उसी रात को उसने प्रार्थना किया और उसी रात को परमेश्वर ने जो सपना नबूकदनेस्सर राजा ने देखा था उस सपने को दिखा दिया. It is hard to believe the king allowed Daniel much more time. मुझे नहीं लगता कि दानियल को बहुत ज्यादा टाइम उस राजा ने दिया होगा. That night the Lord gives Daniel his answer through a night vision. A night vision in this case could be an aphorism for a dream, or it can mean a conscious revelation that occurred in the evening. रात का प्रकटीकरण यह हुआ कि जो स्वप्न राजा ने देखा था उस स्वप्न को परमेश्वर ने दानियल को भी दिखाया. इसका मतलब क्लियर कट था कि दानियल को
ये जो स्वप्न था ये परमेश्वर की ओर से प्राप्त हुआ था, कोई दुष्ट आत्मा से नहीं या शैतानिक शक्ति से नहीं, क्योंकि दानियल ने परमेश्वर के पास प्रार्थना की थी। तब परमेश्वर ने जो कोडेड मैसेज, कोडेड मतलब पता है कि ऐसा संदेश जिसका कोई उलझड़ा ना कर सके, जो राजा को भी पता ना चले या किसी और को भी पता ना चले, ऐसे कोडेड मैसेज को परमेश्वर ने दानियल को बताया और उसका अनुवाद करवा दिया। We might ask, why did the Lord just give the king the decoded message in the first place? हो सकता है कि हम परमेश्वर को ये पूछे, परमेश्वर तूने राजा को सीधा उस स्वप्न का अर्थ क्यों नहीं बताया? दो कारण हैं इसके पीछे। Since Abraham, God has always revealed himself through the Jewish people. अब्राहम से अब तक परमेश्वर अगर अपने आप को प्रकट करता तो सिर्फ यहूदी लोगों के द्वारा ही प्रकट करता। अब वो नबूकदनेस्सर राजा जो अन्य जाति का था उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो ये चाहता था कि हर चीज में यहूदी शामिल हो। ये परमेश्वर की योजना थी। Secondly, the Lord is speaking to a Gentile leader about the rise and fall of Gentile kingdom. दूसरी बात तो एक अन्य जाति राजाओं को परमेश्वर बता रहा है कि अन्य जाति का राज्य कब खड़ा होगा और कब समाप्त होगा। But the ultimate subject of the vision in Israel future, so Lord uses a prophet to reveal this truth to Israel. ये सारे दर्शन का मायना एक ही है कि इजराइल का भविष्य क्या होगा, और इसीलिए इजराइल के भविष्य इसके साथ जुड़ा हुआ था। इसलिए परमेश्वर चाहता कि कोई भविष्यवक्ता ही इस सच्चाई को प्रकट कर पाए। और इसी के साथ आज का हमारा बाइबल स्टडी समाप्त हो गया है। मैंने आपको दूसरे अध्याय के बहुत सारे वचनों का एक्सप्लेनेशन दिया हूं। यह भी बताया कि राजा ने ऐसा क्यों किया, यह भी बताया कि परमेश्वर ने दानियल का इस्तेमाल क्यों किया, यहूदी व्यक्ति का इस्तेमाल क्यों किया। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो मैं विनती करता हूं कि आप कमेंट में जरूर पोस्ट करें। आपको एक बात बता दूं, मैं आपको अगर ये वीडियो आप चाहते हैं कि यूट्यूब पे बहुत दिन तक रहे तो कृपया लाइक कीजिए, कमेंट जरूर करना। लाइव कमेंट करोगे तो हो सकता है कि लाइव कमेंट मिटा दिए जाते हैं, लेकिन ये सारी बाइबल स्टडी होने के बाद आप कमेंट में इस बाइबल स्टडी के बारे में जरूर लिखिए। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो मुझे प्रोत्साहन होगा और मैं और भी अधिक आपको बाइबल स्टडी के लिए की तैयारी में करूंगा, ताकि परमेश्वर आपको उसके वचनों को वो समझाए। इसके लिए गिफ्टिंग की जरूरत है, इसके लिए प्रार्थना की जरूरत है। तो प्लीज अपने YouTube पे कमेंट पर अपने कमेंट जरूर लिखना। अगर आप हमारे साथ बनना चाहते हैं, अगर आपको कोई सवाल है वो भी जरूर लिखिएगा। जैसे मैंने कहा, जो कमेंट्स आप YouTube पे लाइव में लिखते हैं वो मिट जाते हैं, तो कृपया ये लाइव सेशन समाप्त होने के बाद आप अपने कमेंट पोस्ट कीजिए। मैं सारे पवित्र शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। अंत के दिनों में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पवित्र शास्त्र का अभ्यास करना चाहते हैं और जिनको पवित्र शास्त्र से लगाव है। परमेश्वर हम धन्यवाद देना चाहते हैं उन सारे लोगों के लिए जो आज हमारे से बने रहे और हर गुरु शुक्रवार को 8 बजे का इंतजार करते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जो कुछ सिखाया जा रहा है पिता परमेश्वर तेरे वचनों के द्वारा प्रभु प्रगटीकरण ले आ, लोगों को अंत के दिनों का महत्व समझने दे। ये तो सिर्फ शुरुआत है परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं कि तू आने वाले दिनों में भविष्य बातों को भी बताने वाला है। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, सबको आशीष दे। आमीन और आमीन। याद रखना है शुक्रवार जो 3 तारीख है फरवरी का, उससे हम
13 शुक्रवार मतलब गुड फ्राइडे तक यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बारे में सीखने वाले हैं। 3 फरवरी को हम इसे रोक देंगे, मतलब आने वाले शुक्रवार को दानियल की किताब का अभ्यास हम रोकने वाले हैं और यीशु मसीह के जो क्रूसिफिकेशन का जो भाग है जो पवित्र शास्त्र में है उसको हम पढ़ने वाले हैं। मुझे लगता है आपको इसमें दिलचस्पी होगी, आप ये सारी बातें पढ़ेंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। मैं ये विश्वास करता हूं, अपने दोस्तों को कहना, सबको मैसेज डालना। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।